Dual crypto. Today in this video हम बिटकॉइन की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. Bitcoin on a weekly time frame, hourly basis, in 4 hourly time frame, in daily time frame. We will talk about Ethereum. We will talk about Bitcoin dominance. We will talk about funding rate. What could be the next potential move of the market? We will talk about every single thing in this video. So do make sure to watch the video till the end without skipping any part because it's going to be very informative for you guys. All right. Without wasting any more time, let's jump into the content, guys. First of all, we are talking about is Bitcoin on a weekly time frame. So on the weekly time frame, from past 2 weeks, हमको क्या दिख रहा है कि past 2 weeks से we are not able to go across above this range for any upside momentum. So until unless we are not able to cross above this range, this will be the major resistance level. When nobody was talking about this level, I was the only one who told you this is going to be the still stop point for the Bitcoin, where we can have a certain level of resistance, and that resistance is working pretty well for the Bitcoin. And previously we have many times shorted the Bitcoin from this range. हमने काफ़ी बार बिटकॉइन की इस रेंज से शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है. हाउएवर व्हाट आई बिलीव इज़ कि बिटकॉइन को एक डाउन साइड का मूव लेना चाहिए जो अप टू $25,200 to $700 का होगा, जहाँ से उसको अच्छा पुश फिर मिलेगा जब वो ऊपर की लिक्विडिटी को तोड़ पाएगा. फॉर नाउ इट्स गेटिंग वीकर. Okay, and as it's getting weaker, it might gonna go sideways and it's gonna be dump, and then we can see upside move. However, we will also talk about on a monthly time frame what is going around with the Bitcoin. So in the previous video, I'll show you in the next video where I have confirmed multiple times. People were bearish for March. Many people were bearish for the March. मैं ही अकेला इंसान था जो I was pretty much believing that the Bitcoin will be pretty bullish for the month of March. Okay, so वो एनालिसिस तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आउट फॉर द वीकली टाइम फ्रेम, फॉर लुक आउट फॉर द आवर्ली बेसिस व्हाट कुड बी द पोटेंशियल मूव. और मैं क्या सोचता हूँ कि इस मंथ में क्या हो सकता है. आई बिलीव इट कुड बी द मंथ ऑफ कंसोलिडेशन और अ मंथ ऑफ डंप. To grab, to go above this range is going to be very hard for Bitcoin, because consecutively we have got 4 months, I'm sorry, 3 months in positive, which is a good sign actually. And a weekly closing was pretty good 2 weeks back, but then after we have got multiple dojis, one for the red, one for the green. And so this is the market is indecisive at this range, at the range of $29,000 to $30,000 is a very indecisive range, where the many people are thinking that the market will go bullish, and many are thinking that the market will go bearish. So it's turning for the Bitcoin. On the other hand, we are seeing that Bitcoin एक bearish diversion भी बनाते आ रहा है. ये bearish divergence, you can see the RSI is not able to break above this range. However, हमको एक जो ये boarding wedge से breakout मिला है, we are able to sustain about. As soon as we will be able to close below this range, we can expect a dump followed up to $25,000. Okay, if we are going like this, then the first dump that we will consider is going to be $25,200. Then next will be at $24,000. Okay guys, this is what I believe this could possibly happen with the Bitcoin. However, this is what I'm thinking on a lower time frame. So let's talk about the Bitcoin short setup that I gave you yesterday, day before yesterday. Within 2 days we have generated a lot of profit. This was our entry, a perfect entry with a tight stop loss. You can see all of my targets exactly got hit. We have given you extra 7 target as well, because this normal there are 6 targets and there is one extra, which is the range from 6 to 7, that this could also possibly could happen. So this is the range. So we have got our 6 targets met. That is a 3% range. We have generated a huge sums of profit with this perfect setup. In order to calculate our risk was pretty low, considering 1.81% in regards to 3% of our take profits. That means we are going for 1:3, right? So this was 1.5:3. This was our risk reward ratio. So 1:2 you can also calculate, which is a very good risk reward ratio, and we have generated a good sums of profit out of it. However, yesterday the Bitcoin was when the Bitcoin was
गेटिंग ड्रॉप्ड आउट, उसी वजह से अल्ट में अच्छा एक ड्रॉप हमको देखने मिला। जब बिटकॉइन में ड्रॉप आएगा और बिटकॉइन की डोमिनेंस में भी ड्रॉप आएगा, इवेंचुअली बिटकॉइन, आई एम सॉरी, अल्ट कॉइन्स को ड्रॉप होना पड़ेगा। देयर कुड बी सम पर्टिकुलर अल्ट कॉइन्स दैट विल नॉट गोना ड्रॉप। हमने जब बिटकॉइन की एक रेंज बाउंड में आ गया था तो हमने कुछ अल्ट कॉइन्स में एंट्री लेके उसमें प्रॉफिट जनरेट किया। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट लिंक। तो लिंक को मैं आपको लेके चलता हूँ लिंक के चार्ट पे कि क्यों हमने लिंक की पोजीशन ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक यू इन अ 4 hourly टाइम फ्रेम, ओके, so you can understand why we took a entry inside the link. So basically you can see that we have got a breakout from this range, okay. Let me just mark it out for you कि ये जो रेंज थी, एक बार, दो बार, तीन बार उससे रिजेक्शन मिला, 4-5 बार, and then we have got a breakout from this range, right? So when we have got a breakout, it came for a retest. I thought it will be a retest and we will bounce back pretty well, but it didn't acted as the way we wanted because the Bitcoin was dropping out and the link didn't had that kind of strength to hold above this range, okay. वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर रह नहीं पाया। ऑन द अदर साइड एक आर्ली टाइम फ्रेम पे या 4 hourly पे तुम देख सकते हो कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था जो एक बुलिश पैटर्न होता है। सो दैट्स द रीज़न मैंने आपको सिग्नल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था, एंड हाउ एवर इट डिडंट वर्कड आउट प्रीटी वेल। स्टिल हमने इसको प्रॉफिट में ही क्लोज आउट किया आज, ठीक है। सो इन 15 minutes टाइम फ्रेम आई विल टेक यू देयर एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। इट वाज अ लॉट ऑफ लॉस दैट आई वाज बेयरिंग फॉर द पर्टिकुलर टाइम, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है द अमाउंट ऑफ लेवरेज यू आर टेकिंग, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। इफ़ यू हैव अ गुड एंट्री, इफ इट्स गिविंग यू गुड प्रॉफिट, इट कैन ऑल्सो गिव यू गुड लॉस। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मेरे को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिला, मैंने इसको राइट कर लिया और मेरा प्रॉफिट जनरेट मैंने कर लिया। सो आई ओवरऑल, टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई ऑल्सो बुकड आउट माई हाफ लॉसेज हियर। सो मैंने अपनी हाफ पोजीशन इधर बंद कर दी, फिर वही हाफ पोजीशन जो मैंने लॉस में बंद की इधर मैंने वापस इधर मैंने बाय आउट कर लिया। फिर जब वो इधर आया तो मेरे को 150% का प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में मैंने अपनी पोजीशन को बुक आउट कर लिया गाइस। मैं 250% तक गया, बट मैं वापस उसको होल्ड कर रहा था कि फॉर अ मोर प्रॉफिट एज यूजुअल लाइक ए ह्यूमन बीइंग, एंड इट वेंट लो। सो इधर से इसको रिजेक्शन मिला, जैसे ही रिजेक्शन मिला सो आई ट्राई टू बुक आउट माई होल पोजीशन, नॉट ट्राइंग टू रिस्क इट आउट, ओके। आफ्टर दैट let's talk about Bitcoin again. So this is the Bitcoin chart. Previously I have also given you analysis where we have taken out our setup right here, okay. We have taken our previous long setup here and we have righted it to the top, from which we have shorted here and we have righted it till this dump, okay. So we've been completely right from all this time, but what I'm watching out right now, what I thought of could possibly happen, because we have got a breakout above this range and we possibly got a breakout above this range, but when the 4 hourly time frame closed below this range, which is not a good sign for the Bitcoin. However, I have set my stop loss very tight. If the stop loss gets met, तो ये सेम वही 1.25% का स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट, अगर मेरा लास्ट टारगेट्स की बात करूँ तो 3.46% का होगा, और पूरी हाई रेंज पकड़ ले तो 4.66% की रेंज होती है, ओके गाइस। सो इट्स वर्किंग फाइन एज ऑफ फॉर नाउ, नॉट मच ऑफ अ लॉस, एंड आई एम बिलीविंग दैट व्हाट कुड एक्चुअली हैपन गाइस। लुक, तो हमको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अभी बिटकॉइन की बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो बहुत कुछ भी अगर आप अपना काम कर रहे हो तो बाजू में रख दें। लुक गाइस, अब मैं आपको एक इनसाइडर इन्फो बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखो, ठीक है, फंडिंग रेट अभी क्या चल रही है बिटकॉइन बाइनेंस पे भी 89%, नॉट इवन 100। ओके एक्स पे तो हमेशा नेगेटिव ही रहती है, DYDX पे नेगेटिव है, बायबिट पे 14 है, दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव। गेट IO पे भी नेगेटिव है, बिट गेट पे 0 है। सो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो गया, अब मार्केट में लोगों ने समझ गए कि यहाँ से एक डंप की
अब लोग समझ रहे हैं जो चीज़ मुझे हफ्ते पहले से पता थी, 1.5 हफ्ते पहले से पता थी, 2 हफ्ते पहले से जो चीज़ मैं बोल रहा था, इनफैक्ट 3 हफ्ते पहले से जब वो वहाँ पे उस रेंज पे पहुँच भी गया तब भी मैं बोल रहा था, वो लोग अब भी एनालाइज कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में वो वॉल्यूम की वीकनेस आ रही है, राइट। तो वीकनेस आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, अब बहुत सारी शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप हो गई है। दैट्स द रीज़न लोगों ने जब यहाँ से ये डंप देगा ना, हमने तो यहाँ पे अपना शॉर्ट की पोजीशन अब ओपन कर दी, हमने तो अपने 700-800% का प्रॉफिट बुकआउट कर लिया, राइट। बट लोग क्या करते हैं, जब ये रेंज की लो पे आया ना, यहाँ पे एक वीकनेस आई, यहाँ पे लोगों ने अपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने लग गए, इस रेंज पे ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट्स ऑब्वियस कि ये है ना शॉर्ट स्क्वीज़ की बस है, जस्ट अ शॉर्ट स्क्वीज, इट्स नॉट अ नॉर्मल volume, I believe it's just a short squeeze, and I believe many people are trying to short the market right now. प्रीवियसली भी मैंने क्या किया था, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स करना शुरू कर दे, सो जो मैंने 3 एरो बनाए अभी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वे आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। तो जो 3 मैंने एरोज बनाए हैं, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी एरिया है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट लुकिंग आउट इनटू द डेटा वाइज और एनी द स्टफ, बट जो मुझे दिखता है कि यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे, इस रेंज पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, इस रेंज पे शॉर्ट्स बनाए होंगे, तो ओवरऑल हो क्या रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब एक शॉर्ट्स का एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट्स का एरिया है, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, तो मैक्स स्टॉप लॉस जो जहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि उनका स्टॉप लॉस हो सकता है ये रेंज, ठीक है, ये रेंज, ये हाई है प्रीवियस, और इसके ऊपर अगर अपने चले जाएंगे तो ये इनका स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो ये से यहाँ एरिया है ना, $29,400 से $200 से $500 का जो रेंज है, दैट इज़ अ स्टॉप लॉस जोन फॉर, ठीक है, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो विद इन $29,500 से $30,000 का जो रेंज बनता है, दैट इज़ गोना बी स्टॉप लॉस एरिया फॉर द शॉर्टर्स। सो क्या हो सकता है, ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे लोग ब्लाइंडली बुलिश भी हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबल थिंग, बट आई एम अगेन प्रिडिक्टिंग what could be the possible next move of the market. This could be very important, guys. I could totally be wrong, guys. I could totally be wrong, okay. बट जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मैंने जिस हिसाब से अपनी ट्रेड ली है, जो मैंने सेटअप लिया है, आई बिलीव दिस कुड पॉसिबली हैपन। अगर मैं रॉन्ग हो रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये रेंज ब्रेक होने के बाद अपना शॉर्ट्स की पोजीशन बिल्डअप कर दूंगा। मेरी ऑलरेडी एक $28,400 से एक बड़ी शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, जिसको मैंने छुआ ही नहीं है, जो मैंने वो अलग ही एक्सचेंज पे पड़ी है बाइनेंस के, क्यों नहीं छू रहा, बिकॉज मेरे को पता है कि एक अच्छा डंप आने वाला है। बट हम डेली बेसिस पे स्कैल्प्स करते हैं, हमको मेरे जो मेंबर्स हैं, जो आप लोग हो, आपको क्या चाहिए, डेली बेसिस पे कुछ स्कैल्पिंग मूव्स चाहिए मार्केट की, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्प करके प्रॉफिट जनरेट करना है। सो ऑन दैट बेसिस व्हाट आई बिलीव इज, आई एम अगेन प्रेडिक्टिंग, दिस इज व्हाट आई बिलीव दैट कुड हैपन, ओके, दैट बिटकॉइन यहाँ से रेंज करके एक अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। इट हैड ऑलरेडी ग्रैब्ड द शॉर्ट्स राइट हियर, बट आई बिलीव जो लोगों ने बड़े शॉर्ट्स के पोजीशन यहाँ पे होल्ड जनरेट किए, यहाँ पे किए, यहाँ इस पूरे एरिया में जहाँ पे जितना भी किया है ना, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, तो इस एरिया पे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स की अपनी पोजीशन बिल्डअप किए, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि एक शॉर्ट स्क्वीज़ आए, ठीक है, एक शॉर्ट स्क्वीज़ आए यहाँ से लेके यहाँ तक, and once the short squeeze is completed is the point हम अपनी शॉर्ट की बिगर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं गाइस, राइट। ओवरऑल टेक्निकली भी अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि यस वी आर मूविंग टू अपसाइड एंड वी विल ग्रैब द अपर साइड लिक्विडिटी। शॉर्ट्स के जो स्टॉप लॉस है हम उनको हिट कर देंगे पहले, उन लोगों को खा जाएंगे, एंड देन फिर वी विल लुक फॉर, एंड देन आफ्टर दैट वी विल लुक फॉर अ बिग डंप इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। सो ओवरऑल इन द मंथ of April, what I believe is
that possibly the market will stay in a sideways or the market will stay in a bearish trend. Let's see how the market reacts because it's too early to say anything as of now. And अभी के लिए भी Bitcoin is not showing any strength. So let's see in coming hours how the Bitcoin is reacting, if we are getting a break above this range or we are just heading down to hunt the stop loss for the longs, and as well as we are going to be going pretty lows from this area only. Like यही local top है कि नहीं है, we will get to know about it in later part of the day. दिस इज़ अबाउट इथेरियम. इथेरियम के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता. डेली पे ब्रेकआउट है, ये अभी भी अपर रेजिस्टेंस के पास ही अपना कंसोलिडेट कर रहा है. सो बिटकॉइन में अभी भी स्ट्रेंथ है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी बहुत बुलिश है. और मुझे अभी भी लगता है कि बिटकॉइन जो रेंज जो जहाँ तक जा सकता है, इट्स कुड बी अप टू 48.59%. दिस इज़ द रेंज दैट आई बिलीव बिटकॉइन जा सकता है. इट कुड नॉट गोना गो स्ट्रेट अहेड. और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस पे स्ट्रेंथ आती है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द बिटकॉइन इवेंचुअली, बिकॉज इट विल पंप द बिटकॉइन एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट इन अ लिटिल बिट एरिया और इट मिड सेगमेंट, बिकॉज अगर you know the rest of the part. So मैं क्यों बिटकॉइन में लॉन्ग का सोच रहा था, बिकॉज वी हैव गॉट द ब्रेकआउट बट इट सीम्स लाइक अ फेक आउट नाउ. And let's see how it reacts in the coming hours. Let's talk about very important E-mini futures. E-mini futures is very bullish at this point, and it's showing very bullish momentum after this breakout on a daily. It was not able to sustain. E-mini futures जो SXP futures है वो नहीं sustain कर पा रहा था इस एरिया के ऊपर. Then we have got this lower support trend line which was been broken down. तो ये भी ब्रोक हो गया था नीचे, पर eventually now with the bullish momentum we have seen a break above this range. So what could possibly happen that we can reclaim this area, we can go up to 42,000, and if that happens then we can see same bullishness or little bit of bullishness inside the price of Bitcoin, right? So if this happens and if the E-mini futures keeps on rising, this will be a good sign for the Bitcoin in the upcoming days. Might be we can look for a local support or local dump, but overall market sentiments in the weekly, in the monthly, the sentiments are still bullish, guys. So that was that. फंडिंग रेट के बारे में मैंने आपको बात कर ली है. लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स अभी क्या चल रहा है, कितने लिक्विडेशन हुए लास्ट 1 आवर में, एक और बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमको थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया पड़ जाएगा. 3.17 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है 1 आवर में. 115 मिलियन डॉलर्स का 24 आवर्स में हो चुका है. लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हो रहे हैं लास्ट 4 आवर्ली में, एंड 1 आवर्ली में भी लॉन्ग्स के काफ़ी लिक्विडेशंस हो रहे हैं. So let's see how the market reacts in the upcoming hours, and I'll be keeping you updated on my Telegram, and further signals will be provided to you on my Telegram. Okay, I'll see you in the next video, guys. Bye bye.